इट्स ऑन बस, ठीक है। फिर जी सर, शैल वी स्टार्ट? ठीक है, ठीक है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम ऑन बोर्ड। डॉक्टर उस्मान सना here. We'll be discussing facial profiling for leaders, entrepreneurs and marketers. Next please. Objective of today's session is to understand the science of facial profiling. How does it actually works? इसकी science पीछे है क्या? Then we'll try to apply facial profiling to leadership and marketing. Then decoding behavior for team management and consumer insights. We'll be using facial analysis for brand positioning and sales influence, and I'll be sharing my application. उसका barcode आता जाएगा, तो you can just scan it at any time and you can just use it in real time. And we'll explore real-time application of the AI tool that I have developed myself. Next slide. So what is facial profiling? It's a psychometric tool and visual analysis of facial features. Psychology is basically what our brain is thinking and it's reflecting on our face, right? It's not a single process, it's a two-way process, it's not a one-way process. Whatever we are thinking is a reflection of what our thoughts are, and what happens is if we alter them, अगर हम उसको alter करते हैं, change करते हैं, अगर हमारा depressed mood है या हम anxious हैं या overall negative thinking कर रहे हैं, और अगर आप environment सिर्फ change कर लें अपना, वो association या उस environment से निकल के positive environment में चले जाएं, तो क्या होगा? Your brain state changes. The brain state change जौन सा है वो अगर constant रहता है और आप deliberately ऐसे लोगों और ऐसे environments में अपना time गुजारते हैं, तो your thought process और cognition is going to be altered, और उस चीज़ की reflection face पे आना शुरू हो जाती है, और वो जो रिफ्लेक्शन और चेंजेस हैं हम फेशियल प्रोफाइलिंग की साइंस और आर्ट के थ्रू पढ़ते हैं. दैट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ फेशियल प्रोफाइलिंग. इट्स बेस्ड ऑन न्यूरोसाइंस, फिजियोनॉमी एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी. It helps decode personalities, communication and emotional intelligence. So these are very important things which are relevant application in the perspective that we are talking right now. Okay, this is the scannable barcode for the app. You can scan it. ये आगे भी आता रहेगा. I have named it Focus. My facial profiling application name is Focus, and that stands for facial observation for quantitative understanding of the self. Now the thing to understand is कि ये हम अपनी personal assessment जब कर लेते हैं, अपना self awareness हमें हो जाता है, हमें अपनी strengths और weaknesses का पता चल जाता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग डिफ़िकल्टीज़ वो क्लियर हो जाती हैं. हु आई एम नॉट, दैट हेल्प्स अस ऑलमोस्ट इन एनी एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. अब मॉडल के अंदर फ्रेम शेप है. द फ्रेम शेप हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड थॉट प्रोसेसेस. इसकी डिटेल में और डेप्थ में हम आगे चलते जाएंगे. तो जो शेप ओवरऑल फेशियल शेप है ना, उसको अगर हम फ्रेम से समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए अगर लें तो वो हमें हमारे डिसीजन मेकिंग और थॉट प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प कारी होती है. ऑर्बिट जो हमारा आई का जिसमें हाउस होता है, दैट शोज़ इमोशनल प्रोसेसिंग एंड इंटरपर्सनल परसेप्शन. देन क्वार्टर्स विच आर द 3 zones, वो भी हम इन डिटेल डेप्थ में डिस्कस करेंगे. दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लीडरशिप एंड एनर्जी जोन्स. एंड द यूनिट बैलेंस. यूनिट बैलेंसेस के ओवरऑल जो फेस है वो कितना बैलेंस्ड है, लेफ़्ट और राइट साइड ऑफ द फेस कितनी हार्मोनाइज्ड है, तो वो हमें टीम डायनामिक्स और वर्क एनर्जी बिल्ड करने में हेल्प करती है. देन सिमेट्री, ऑब्वियसली वी लुक इनटू मॉडल्स, एक्टर्स एंड पब्लिक पर्सनालिटीज़. उसमें कैरिज्मेटिक पीपल, we come across individuals who are of charismatic personality and we usually get impressed from them. Then confidence and authenticity, that is all reflected on the face. तो हम इस मतलब what I do is कि मैं आपको एक एक फेशियल फीचर की क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन के साथ ये बता सकूँगा कि जो ये फीचर है ये इस एट्रीब्यूट और इस स्ट्रेंथ और इस वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट प्लीज.
नेक्स्ट. So when we talk about leadership, so recognizing the leadership potential in facial traits. Grossly talking about that, nose is a significant the facial element that represents leadership. मैं अभी एक एक बता रहा हूँ, बाकी हम इन डेप्थ में चलते जाएंगे. Assigning roles aligned with personality strengths. आपकी strengths क्या क्या हैं, आप कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, वो फिर हम आगे इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे साथ साथ. एनहांसिंग टीम कोहेजन एंड कम्युनिकेशन. मुझे पता है कि मेरे टीम मेंबर में इसकी ये एक वीकनेस है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना इसके लिए मुश्किल है, लेकिन प्रोजेक्ट ये स्टार्ट कर दे तो कंप्लीट ज़रूर कर लेगा. वी कैन रीड दैट थ्रू द आईब्रोज. ठीक. एक बंदा कंसिस्टेंट है तो मैं उसको एक ऐसे टास्क पे ऐसी जगह पे एलोकेट करूँगा कि जहाँ मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए. एक बंदा इनोवेटिव है, उसकी फेशियल आउटलाइन से मैं देख के असेस कर लेता हूँ कि इसके अंदर इनोवेशन क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी है. तो हर बंदे की स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ना, वो आप फेशियल एनालिसिस से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद उसको टीम डायनामिक्स में अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल कर सकते हैं. आइडेंटिफाइंग इमोशनल ट्रिगर्स एंड स्ट्रेस मार्कर्स. अगेन वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, सेल्स में, मार्केटिंग में, यू नीड टू नो व्हाट आर द ट्रिगर्स. कहाँ पे आपका जो ऑडियंस है, जो क्लाइंट है, वो ही इज़ हैविंग डायलेटेड प्यूपल्स या नॉस्ट्रल फ्लेयर आ रहा है, एंड दैट इज़ आइडेंटिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन. और आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट ही इज़ लाइकिंग और डिसलाइकिंग. नेक्स्ट प्लीज. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर, building buyer persona using facial data. So certain facial attributes are going to tell you that this is a person who is going to be an optimistic person and he is going to buy something which he or she likes, which is very much properly crafted. इसके अलावा is the person going to buy or make a decision on pragmatism. वो cost देख के अपना decision making करेगा, वो रिसर्च पे करेगा कि एनालिसिस पे करेगा. देन टेलरिंग मैसेज टू कंज्यूमर पर्सनालिटी टाइप्स. व्हेन यू हैव दिस स्ट्रेंथ और द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कस्टमर बिहेवियर, तो यू कैन टेलर द क्वालिटी ऑफ मैसेज दैट यू आर गोइंग टू डिलीवर टू योर ऑडियंस, टू योर कस्टमर्स और क्लाइंट्स, एंड यू विल बी गेटिंग अ मच प्रेडिक्टेबल आउटकम एज़ कम्पेयर टू जस्ट हैविंग कोल्ड मार्केटिंग या जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़. लेवरेजिंग इमोशनल क्यूज़ इन मार्केटिंग कंटेंट. पहले मैंने डिस्कस किया कि इफ़ रियल टाइम में आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है या बायर है, उसके फेशियल फीचर्स में प्यूपल डायलिटेशन, प्यूपल्स डायलेट कर गए, इसका मतलब है कि वो उस चीज़ को पसंद कर रहा है. नॉस्ट्रल डायलिटेशन, वो उसका मतलब है कि ही इज़ लाइकिंग दैट, और वो उसके ऐसे कॉग्निशन के या थॉट प्रोसेस के हमें ट्रिगर्स बता रहा है कि उसको ये चीज़, ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, तो हम उस अच्छी चीज़ को उसको दोबारा पिच कर सकते हैं. इंक्रीजिंग इंगेजमेंट एंड ट्रस्ट थ्रू विजुअल कॉन्ग्रुएंस. ये भी यही है कि वट एवर द ऑडियंस और द बायर इज़ लाइकिंग, हम वो वाला कंटेंट, वो वाला मटेरियल, वो वाला प्रोडक्ट वो उसको ज़्यादा शो करके कन्वर्जन या उसकी सेल्स इन्हांस कर सकते हैं. नेक्स्ट. अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा डीप डाउन आएंगे ऑन फेशियल एट्रीब्यूट्स. अगर हम फेशियल जोन्स की बात करें तो फोरहेड जौन सा ना, वो आपके कॉग्निटिव स्टाइल को बताता है कि आपका कॉग्निटिव स्टाइल कैसा है, आप लेफ़्ट ब्रेनर हैं कि राइट ब्रेनर हैं. स्क्वायर फोरहेड स्टाइल रिप्रेजेंट्स द पर्सन इज़ गुड इन मैथमेटिकल स्किल्स, उसकी मैनेजरियल स्किल्स अच्छी हैं, उसकी आइडिया रिसेप्टिविटी अच्छी है, और उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, वो हेल्प करेगा हमें प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बताते हुए या उसको पिच करते हुए, और इनोवेशन स्टाइल हमें कौन सा चाहिए. राउंड या राइट ब्रेनर्स जो से होते हैं, यूजुअली उनका राउंड फोरहेड होता है या उनकी ओवरऑल हेड शेप जो सी राउंड होती है, वो इनोवेटिव होते हैं. उनकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर्ट्स, म्यूज़िक वो बहुत अच्छी होती है. उनमें अगर मतलब मुझे लेफ़्ट और राइट ब्रेनर अगर दो कैंडिडेट्स मिले हों तो मैं उनको सिग्निफिकेंटली
गाइड कर सकता हूँ, कोच कर सकता हूँ कि प्रेफरेबली यू शुड बी चूजिंग, अगर मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ तो भी आप ना मैथ्स, फिज़िक्स, कंप्यूटेशन की तरफ जाएं, जस्ट बेस्ड ऑन द फोरहेड और फेस शेप, बिकॉज दैट इज़ देयर इनहेरेंट पोटेंशियल। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक स्क्वायर फेस हेड शेप का या फेस आउटलाइन का बंदा डॉक्टर या आर्टिस्ट या फिल्म मेकिंग नहीं कर सकता, या कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता। उसका पोटेंशियल ज़्यादा मैथमेटिकल, फिज़िकल, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा है। वेयर एज अ पर्सन, एन इंडिविजुअल विद राउंड फेस और राउंड फोरहेड, विच वी कॉल यूजुअली राइट ब्रेनर्स, उनकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, फिल्म मेकिंग, ड्राइंग ये बहुत अच्छी होती है। तो राइट ब्रेनर्स को यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि यू गो फॉर आर्ट्स, म्यूज़िक, इवन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, क्योंकि उनमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी चाहिए होती है। इसी तरह जो हमारा आईब्रोज है, दे शो कंट्रोल, कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप। उसके आगे क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन आईब्रोज की, वो भी एग्जांपल्स आ जाएंगी। दे हेल्प अस गाइड पैकेजिंग, असर्टिवनेस एंड टोन ऑफ मैसेजिंग। आपने असर्टिव रहना है, आपने फ्लेक्सिबल रहना है, आप उसकी आईब्रोज शेप से ये चीज़ आइडेंटिफाई करके अपना मार्केटिंग मैसेज या अपनी कंटेंट ऑन सना टेलर कर सकते हैं। आइज, दे शो इमोशनल थ्रेशहोल्ड एंड ओपननेस। ये बंदा कितना कम्युनिकेटिव है, कितना ओपन है कम्युनिकेशन को, कि कितना कंजर्व है। तो आई साइज़ से, उसकी शेप से हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और उसमें हमें हेल्प क्या होती है कि असिस्टिंग यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस जिन्होंने ये डेवलप करनी है, वो उसको इस्तेमाल करके तो उस ऐसे इंडिविजुअल की के लिए जो ऐप बना रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलप हो रही है, उसको ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। Then nose, that represents drive, ambition and attention to details, and it also I told के leadership को भी show करता है nose। वो identify करेगा preference of utility based products, कि ये कौन सी utility का product है, वो prefer कौन सा करेगा। Mouth, it represents communication, emotional expression that helps guiding the branding language and customer service style, कि कौन सा servicing style उसको चाहिए होगा। Lastly, the jaw or chin line, that helps in decision making speed and resilience, और वो आइडेंटिफाई करता है कि कन्वर्जन स्ट्रैटेजी और अर्जेंसी अपील हमने कहाँ करनी है, ताकि हमारा जो ऑडियंस है, जो डिसीजन मेकर है, यूज़र है, उसका क्या स्टाइल होगा। नेक्स्ट प्लीज। सो कमिंग ऑन टू नाउ द अपर पार्ट ऑफ द फोरहेड। अब इसको T1 भी बोलते हैं, टेरिटरी 1। ये हेयर लाइन से शुरू होती है और अपर आईब्रोज तक रहती है, मतलब दैट्स द लिमिट दैट रिफ्लेक्ट्स द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इट ऑल्सो हेल्प्स कि इसका विजन क्या है, इसका फिलोसॉफिकल थाट प्रोसेस कैसा है। अ वाइड फोरहेड रिप्रेजेंट्स कि ही इज़ हैविंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजिक फोरसाइट। बेसिकली T1 डोमिनेंस के, हाई फोरहेड के लोग, वो अपना डिसीजन मेकिंग बेस करते हैं ऑन रिसर्च। So if I have a patient or a client, तो मुझे पता है कि T1 डोमिनेंस वाला जो पेशेंट या क्लाइंट है, उसको मैंने ना रिसर्च, डेटा, इंफॉर्मेशन देनी है। मुझे ये भी पता है थ्रू फेशियल प्रोफाइलिंग कि दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू मेक द डिसीजन देयर एंड देन। तो इसलिए मैं उसको कंपेल नहीं करूँगा कि अभी ही मेरे साथ कन्वर्ट करे या कन्वर्ट हो। और थैंक यू सर, मुझे सिर्फ उसको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो अपना उसके बाद he'll take the information, he'll take the consultancy from me, guidance, and he'll go away। वो 3-4 और लोगों के पास जाएगा, और जिसने उसको सबसे एक्यूरेट डेटा एनालिसिस, रिसर्च बताई होगी ना, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, he'll come back to that person जिसने उसको सबसे रेलेवेंट और एक्यूरेट डेटा दिया होगा। ठीक इसी तरह आईब्रो स्पेस, अपर आईब्रो से आई का डिस्टेंस कितना है, दैट डिनोट्स मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल प्रोसेसिंग कैसी है, एंड रिएक्शन स्पीड, हाउ मच द पर्सन इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड क्विकली और स्लोली। ठीक, द स्पेसिंग एंड द शेप रिफ्लेक्ट्स हाउ वन प्रोसेस इमोशंस एंड एवेल्युएट सिचुएशंस। इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें तो
जिनका आईब्रो का ये जो स्पेस ज़्यादा होती है ना, दे कैन होल्ड ऑन टू आइडियाज़, ठीक। और वो एक जगह पे, एक सिचुएशन पे, एक लेक्चर में आइडियाज़ पिक करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ पे दूसरी तीसरी जगह पे एट देयर एडवांटेज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कन्वर्स एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी स्पेस जौन सी है वो कम है, उसके बारे में ऑन लाइटर नोट कहता हूँ कि वो बंदा पेट में बात नहीं रख सकता। मतलब एक जिसका लो आईब्रो है ना, वो देर एंड देन हर बात शेयर कर लेगा। तो अगर मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है या एक ऐसा पेशेंट है जो सही बात नहीं बता रहा या कुछ मास्क करना चाह रहा है, तो इस फेशियल फीचर के साथ मैं थोड़ा सा उसको प्रोब करूँगा और वो मुझे ना अपनी वो बात जो वो मास्क करना चाह रहा है ना, वो मुझे बता देगा, ठीक। दैट हैपन्स इन स्टूडेंट्स ऑल्सो, दैट हैपन्स इन इंडस्ट्री ऑल्सो। Eyes, they are the most expressive zone of the emotional threshold, empathy, trust and observation. Basically, large eyes represent high empathy and narrow eyes, slanted eyes shows that the person is analytical and observant. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है। हम यूजुअली समझते हैं कि अगर ये इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है या एम्पैथेटिक नहीं है ना, तो ये ऑपोजिट होगा। ऐसा नहीं होता। फेशियल प्रोफाइलिंग में ये है कि अगर एक बंदा इमोशनल इंटेलिजेंट कम है ना, तो वो फोकस ज़्यादा होता है। हमें अनफॉर्चुनेटली स्कूल में, घरों में, इंस्टीट्यूशन में ये सिखाया जाता है, या हम एज टीचर सिखा रहे होते हैं, या तुम हो या नहीं हो, और सिखाया जाता है दिस और दैट। फेशियल प्रोफाइलिंग की जो आर्ट और साइंस है ना, वो ये नहीं कहती। वो ये कहती है कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है ना, तो आप फोकस ज़्यादा हैं। वी डोंट लेबल और जज पीपल, हम उसकी स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर एक मेरा स्टूडेंट है ना, वो फोकस ज़्यादा है ना, तो मैं उसको देर एंड देन काम टास्क दे के ना, मैं उसे काम करवा लूँगा। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जो इमोशनल इंटेलिजेंट ज़्यादा है, उसको मैं इमोशनली इंगेज करके उसको रूटीन पे, कंसिस्टेंसी पे, काम करने पे हेल्प करूँगा। सो जस्ट बेस्ड ऑन फेशियल प्रोफाइलिंग आई कैन आइडेंटिफाई कि इस स्टूडेंट के साथ मैंने कैसे मैनेज करना है और इस स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना है। एंड लाइकवाइज पेशेंट्स के साथ, कुछ जो फोकस लोग होंगे वो आपकी बात सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ठीक है, उनको मुश्किल होती है। जो इमोशनल इंटेलिजेंट है ना, वो आपके पाँव में, जूते में आके सोच सकता है कि इस टाइम मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो हमें क्लिनिकल एप्लीकेशन में, रियल टाइम एप्लीकेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा अंडर एरियाज़ ऑफ द आइज़, basically they show emotional fatigue, stress and stress memory and social response. Puffiness show and dark shadows show signal of resolved emotional residue. Now things are, यहाँ पे थोड़ी सी ज़रा ये ख़तरनाक हो जाती हैं चीज़ें। लव लॉसेस बेसिकली यहाँ से पढ़े जाते हैं, ठीक। अब लव लॉस का मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो हम समझते हैं लव लॉस, मतलब अगर मेरा कोई पेट था, अगर मेरी कोई ऐसी बिलोंगिंग थी जो मुझे अच्छी लगती थी एज अ किड, मतलब मेरा कोई रुमाल, मेरी कोई बुक, मेरा कोई गिफ्ट, कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसी पर्सनालिटी, इफ़ आई हैव लॉस्ट दैट ऑब्जेक्ट और दैट पर्सन, तो वो आँख के नीचे रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब इसके साथ साथ ये है कि ये लॉस आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद उसका ग्रीफ है कि नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे ग्रीफ लाइन आती है। तो व्हेन आई कोच एंड व्हेन आई प्रोफाइल पीपल, तो आई कैन आइडेंटिफाई कि इनका लव लॉस था, और ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये प्रोफेशनल साइड पे था कि प्राइवेट साइड में था। इसके बाद उसका हमको ग्रीफ है कि नहीं है, वो भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सम पीपल आर सो मच इमोशनली स्टेबल दैट दे कैन ओवरकम दैट ग्रीफ and that does not represent on the face, but people with less mental stability या emotional intelligence, जो emotional intelligent नहीं होते, वो अपना ग्रीफ छुपा नहीं सकते, फिर हम उसको पढ़ लेते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, कोचिंग और मेंटोरिंग में जाके जब हम उस कैंडिडेट को, इंडिविजुअल को उस ग्रीफ से निकालते हैं ना, तो द ग्रीफ लाइन गोज़ अवे, ठीक। तो ये सारे मार्कर्स होते हैं फेस पे। आईब्रोज, they show assertiveness, dominance and self-expression. Thick and sharp angle eyebrows suggest confidence.
whereas thin eyebrows may show flexibility or insecurity. So ये चीज़ ऐसी है कि जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में एट स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर सकते हैं. Then the bridge of the nose is associated with integrity, discipline and self-confidence. It also is an attribution of how strong leadership potential you have. Nose tip जौन सी है मतलब that shows desire, material needs and ambition. A round or full tip correlates with generosity and indulgence. Nostrils, the size of the nostril, that shows financial management style and impulsivity. इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं वो भी नॉस्ट्रल के साइज से और डायमेंशन से पता चल जाता है. Lips, their fullness and shape shows emotional expression, warmth and communication. If I have to choose anybody over here who is going to represent me for marketing, so I'll choose a person with thick lips. ठीक है, because person with thin lips is going to be very precise and conserve. अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक बंदे ने 3 मिनट 5 मिनट बाद कम्युनिकेट करनी है ना, तो मैं एक थिन लिप्स का इंडिविजुअल यहाँ से चूज़ करूँगा क्योंकि वो प्रिसाइज होगा, टू द पॉइंट बात करेगा, बात ख़त्म हो जाएगी. लेकिन जिसके थिक और फुल लिप्स होंगे वो उसको आधा घंटा कहेंगे ना खड़ा बात करता रहा, वो करता रहेगा. तो अगर मुझे ऑडियंस में से चूज़ करना है तो आई कैन जस्ट पॉइंट आउट कि यार आओ मेरे लिए बात करो यहाँ पे खड़े होके. इसी तरह मार्केटिंग के लिए मुझे अगर बंदा चूज़ करना है तो आई वुड प्रेफर कि मैं एक ऐसा इंडिविजुअल करूँ जो मेरे लिए अच्छी बात कर सकता हो. फिल्ट्रम, दिस इज़ द एरिया ऑफ द फिल्ट्रम that shows strong vitality and interpersonal engagement. Short and faded philtrum with lines on it, that shows that the person is about to burn out या उसकी लाइफ फोर्स थोड़ी वीक है. खाली यही नहीं है, हमारे पास ऑगमेंट करने के लिए ईयर्स का साइज़, उसकी शेप भी होती है. सो इट्स नॉट ओनली कि आप एक एलिमेंट देख के एक बंदे को लेबल या जज कर रहे होते हैं, हम एनालिसिस कर रहे होते हैं और उसकी एक पूरा एल्गोरिदम बनता है. एक ख़ास फेस शेप का इंडिविजुअल with a stronger nose and a strong jaw is fit for a leadership position. ठीक. Chin, that represents willpower, decisiveness and resilience. अब जो square shape chin है, that's going to show determined and assertiveness, whereas rounded chin is much more accommodative. Lastly is the jawline, that represents how the person handles conflict and power. A sharp jawline is going to show tenacity, persistence, tenacity, how much control the person has. And a soft jawline is going to be a person who is much more diplomatic. अच्छा जी, that was individual facial element. अब हम थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं और हम कॉम्बिनेशन पे चले जाते हैं कि हाई फोरहेड और शार्प जॉ है ना, that will be a person who is a thinker and a doer. अब वो ऐसा है कि इस attributes वाला individual is a good person to be in a leadership position जहाँ पे आपको heavy environment है, immediate आपको decision making power चाहिए और जहाँ पे strong leadership attributes चाहिए. इसी तरह round eyes और soft jaw जौन सा है, that is a person who is emotionally tuned and he is a peacemaker. अगर आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, डिसएग्रीमेंट आ रहा है, तो क्या है कि वो जो राउंड आइज़ और सॉफ्ट जॉ वाला इंडिविजुअल है ना, वो सपोर्ट के लिए, थेरेपी के लिए और एचआर में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए अच्छा इंडिविजुअल होगा एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन हु हैज़ हाई फोरहेड एंड शार्प जॉज. ठीक. देन द सिचुएशन इज़ स्ट्रेट ब्रोज एंड पॉइंटेड चिन. इस तरह के इंडिविजुअल्स की बड़ी क्लियर बाउंड्रीज होती हैं एंड दे कैन टेक बोल्ड एक्शंस. सो दे आर appropriate for sales, negotiation and frontline leadership. So based on facial features, अगर हम उनको ये सिर्फ मैं आपको एक एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, अगर आप इस पर एक दो ऐड ऑन करते जाएँ फीचर्स तो चीज़ें और कॉम्प्लेक्स और एक्यूरेट होती जाएंगी. सो अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज देखें, ब्रांड एक्स इज़ यूजिंग फेशियल प्रोफाइलिंग टू हायर EQ sales team. So you can use that for hiring a team which has a high EQ level,
जिसका हायर EQ लेवल होगा वो अपनी ऑडियंस का, अपने क्लाइंट्स का प्रॉब्लम चैलेंज अच्छे तरीके से समझ सकेगा, और जो प्रोडक्ट डेवलप करेंगे वो ज़्यादा अच्छी, टेलर्ड और अथेंटिक होगी। A startup Y, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, इंक्रीजिंग कन्वर्जन विद इमोशनल फेशियल क्यूज इन देयर एड्स। देन रिटेलर Z इज ऑप्टिमाइजिंग स्टाफ प्लेसमेंट थ्रू फेशियल एनालिसिस। अब जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, स्टाफ प्लेसमेंट में उन्होंने उसको रिसेप्शन पे, फ्रंट एंड पे बिठा दिया। जिसने अपनी HR टीम के कॉन्फ्लिक्ट्स को रेजोल्यूट करवाना है, तो जो हमने पिछले वाला ये बताया था, स्ट्रेट ब्रो और पॉइंटेड चिन वाला बंदा, वो क्लियर बाउंड्री रखेगा कि तुम सेल्स के हो, तुम मार्केटिंग के हो, तुम HR के हो, तुम ऑपरेशंस के हो। तो इस तरह से आपको अपनी वो जो टीम एलोकेशन और अपॉइंटमेंट है वो फैसिलिटेट हो जाएगी। अब हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज इन हायरिंग, वी कैन शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट टू रोल ट्रेट्स। आपको लीडरशिप का बंदा चाहिए, आपको मैनेजमेंट का बंदा चाहिए, तो आप एक लेफ्ट विनर चूज़ करेंगे विद स्क्वायर फेयर है फोरहेड शेप। अगर आपको इनोवेशन वाला बंदा चाहिए तो आप एक राइट विनर चूज़ करेंगे जिसकी फेशियल एट्रीब्यूट्स हैं कि उसके ऑलमोस्ट सारे फेशियल फीचर्स राउंडेड होते हैं, ठीक। इसी तरह अगर आपको एक बंदा चाहिए जिसकी ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल्स है, तो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू हैव स्मॉल आइज़ एंड डीप सेट ऑफ आइज़। वो हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ों को ना आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन अगर आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो बड़ा फोकस्ड है, जिसने 5 प्रोजेक्ट्स शुरू करने हैं, 5 टास्क शुरू करने हैं, तो आप उसके आईब्रो स्टाइल से देख लेंगे। दे आर स्टार्टर ब्रोज जो 5 प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, और उसके बाद देर आर एंडर ब्रोज इन द टीम जो कि 5 के 5 प्रोजेक्ट ख़त्म कर लेते हैं, ठीक। तो उसकी फिर मैं आपको अपनी एक्सपीरियंसेस और रियल टाइम एप्लीकेशन भी बताता रहूँगा दैट आई हैव बीन थ्रू इन IT कंपनीज़, और हायरिंग प्रोसेस में मैं बैठा होता हूँ तो मैं चीज़ें कर रहा होता हूँ साथ साथ। इन मार्केटिंग, कस्टमाइज मैसेजेस बाय फेशियल फीडबैक। जिस तरह पहले बताया कि अगर आपका प्यूपिल डायलेट कर रहा है एक ऐड देख के, तो यू आर लाइकिंग दैट। अगर आपका नॉस्ट्रल फ्लेयर कर रहा है तो आप उसके ऊपर अपना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर रहे हैं, विच शोज़ कि यू आर एट पीस। अगर आपका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर रहा है और आपके नॉस्ट्रल भी कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उससे अवर्सिव हो रहे हैं, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, आप उससे रिपल्शन पे जा रहे हैं। तो ये क्यों सिर्फ आपको बता देगा कि जो ये ऐड जिस तरह से मैं जिसको दिखा रहा हूँ ये इसके लिए सही नहीं है। ही इज़ नॉट लाइकिंग द कलर, द शेप, द कंटेंट। तो यू कैन चेंज द कंटेंट और द शेप और द कलर बेस्ड ऑन कि पेशेंट का या क्लाइंट का, यूज़र का फेशियल रिस्पॉन्स कैसा है। इन लीडर्स वी डू कोचिंग बेस्ड ऑन देयर इमोशनल पैटर्न्स, बिकॉज इंडिविजुअलिटी है। और लीडरशिप में बात करें तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इसका लीडरशिप पोटेंशियल क्या है, कितना है। इसको मैंने 5 आउट ऑफ 10 ऑन अ स्केल ऑफ लीडरशिप पे 6 पे कैसे लेके जाना है। इसमें नोज़ का, आईब्रोज़ का, जॉ का, फेशियल आउटलाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है। इन सेल्स वी रिकग्नाइज द सिग्नल्स एंड डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स बेस्ड ऑन फेशियल प्रोफाइलिंग। तो जी अब इंटरैक्टिव एक्टिविटी है। यू कैन जस्ट स्कैन द कोड, एप्लीकेशन आप कर सकते हैं डाउनलोड इसके थ्रू, एंड यू कैन हैव योर पर्सनल एनालिसिस दैट्स इट्स फॉर फ्री फॉर द टाइम। और उसके बाद ये है कि एनीबडी हु इज़ वॉलंटियर्स फॉर अ फेशियल प्रोफाइलिंग, तो आई कैन डू दैट ओवर हेयर राइट नाउ। जी सर प्लीज़ आज। सर ये iOS के लिए नहीं है ऐप, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था डाउनलोड के लिए। नहीं iOS के नहीं है, वेब बेस्ड है, वेब बेस्ड है, इट्स फॉर बोथ। ठीक है, मार्केटर का काम क्या है, वॉलंटियर। तो ठीक है, मैं आपका पता है। अच्छा मुझे तो नहीं पता सर। मैं अब उसको सर इधर आ जाता है कि नहीं, इधर आ कोई जाए नई चीज़ या आप इधर आ जाएं, ज़रा कंफर्टेबल रहेगा ऐसे। नहीं आई ट्राई कि मतलब सोशल चीज़ें ज़्यादा नहीं लेबल नहीं है, इट्स नॉट जजमेंट, इट्स जस्ट माई रीडिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अच्छा जी, वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल with very good wealth management, and with wealth I don't mean कि खाली पैसे, you know how to manage your resources, your health, your finance, your property, everything. थोड़ा सा सीधा देखिए, बस इस तरह से ठीक है। इसके अलावा
base your decisions basically on research. Data based आपकी decision making पहली decision making strength है. Then you base your decision making on pragmatism कि आप कितना risk benefit analysis है, खाली पैसे नहीं है, कितना time लगेगा, कितनी energy लगेगी. That's your second decision making strength. Networking skill is good. मतलब you can network well with people. आप पेट में बात रख सकते हैं, ठीक है. You can hold on to ideas, ठीक. हाँ हाँ. अच्छा, अगर आप ग्लासेस उतारें तो मैं कुछ और चीज़ें बता सकूँगा. अच्छा, यू हैव थोड़ा सा सीधा बस इस तरह से. A bit more of father attributes in your personality. आप में ना आपके फादर के एट्रीब्यूट्स थोड़े ज़रा ज़्यादा हैं. आप प्रोजेक्ट्स या टास्क कौन से हैं ना, वो 6 या 7 शुरू करते हैं बट यू फिनिश 3 और 4. एंगर मैनेजमेंट इज़ अ बिट अ चैलेंज फॉर अस, जिसमें प्राइवेट लाइफ में एंगर मैनेजमेंट इज़ मच मोर अ चैलेंज. Clarity of purpose, what you are going to achieve in your personal life is much more evident and clear for you as compared to in your professional life. You are very precise and confined to the things what you have to deliver. आप बहुत इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधी सीधी बात करते हैं. You are a good support to people whom you work with. You are very responsible. मतलब अब मैं responsible मैं आपको facial feature से बता सकता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ responsible है ये, ठीक. और एंगर मैनेजमेंट हमने बता दी. अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ. तो शादी बात हाँ, किसकी? शादी के बारे में बताएं, दूसरी तीसरी होगी. नहीं सर, वो नहीं, ऐसा नहीं होता, वो मर्जी होती है. अच्छा, थोड़ा सीधा सर बस यहाँ पे. नहीं इस तरह ही ठीक है. अच्छा, आपकी ना पर्सनल लाइफ में इंफॉर्मेशन इनटेक प्रोसेसिंग ना अच्छी है. प्रोफेशनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही होती ना, उसको रिसेप्शन में आप थोड़े स्लो हैं, मतलब एज कंपैरिजन में. दूसरा, यू हैव struggled a bit more in professional life as compared to private life. You enjoy more of your professional life and you're spending more time in your professional side, outer world. कितना ठीक था? सर 85%. ठीक है सर, जितने में बच्चे पास होते हैं, ठीक है. तो सर हमारे 85 पे ए है. ए है तो ठीक है. So I have an A. तो इट्स ऑल कंसेंट बेस्ड, जो भी मतलब ये तो सिर्फ सर मर्जी अपनी कंसेंट बेस्ड है. इन द मीनवाइल यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस ऐप एंड यू कैन यूज़ इट. यहाँ पे हम 3